पीने के पानी में TDS क्या होता है? Question: What is TDS? Answer: TDS, total dissolved solids. A lots of minerals are found in water like calcium, magnesium, chlorine, etc. The RO system removes most of these from your water to make it safe and healthy for consumption and other domestic uses. How much TDS is okay for humans? Answer: threshold of acceptable human drinking water is 500 mg by L. 1500 to 5000 mg by L TDS is equal to brackish water. Less than 5000 mg by L TDS is equal to saline water. What does a good living RO system do? Answer: if raw feed water entering the good living RO system is about 2000 TDS, then the output water TDS will become in the range of 25 to 100 TDS. That is about 98% removal of unwanted salts. 25 ppm TDS is much lower than the TDS of water from many popular brands of bottled drinking water. Good living RO systems committed to improving quality of living and enhancing lifestyle. RO water for your entire house. RO drinking water in every tap of your home, not just the kitchen. RO water for the bathrooms, laundry, for the garden, for your car. Home. Why install RO advantages? Product model capacity, printing, what is TDS, demo, contact. RO water. Frequently asked question, rich and luminous, living with RO quality, pure water for your entire house. Output water TDS will become in the range of 25 to 100 TDS. That is about 98% removal of unwanted salt. 25 ppm TDS is much lower than the TDS of water from many popular brands of bottled drinking water. TDS, total dissolved solids, is a measure of the combined content of all inorganic and organic substance content in water in suspended form. Primary source for TDS are agriculture and residential runoff, soil contamination, water pollution, discharge from industrial or sewage treatment plants, common chemical constituents like calcium, phosphates, nitrates, sodium, potassium and chloride, pesticides arising from surface runoff. Certain naturally occurring TDS arise from the weathering and dissolutions of rocks and soils. ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 60 से 70% पानी है, यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पानी ही पानी है। यहाँ तक कि हड्डियों में भी पानी के बिना 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पानी की मदद से शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं।
पसीने के रूप में या फिर पेशाब के रूप में। इसी वजह से पानी हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, परंतु पानी पीने के साथ जरूरी है यह ध्यान रखना कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। क्या पानी स्वच्छी और शुद्ध है? आरओ या यूवी का पानी शुद्ध और पीने लायक माना जाता है, परंतु क्या ये नुकसान भी पहुंचाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसा पानी पीने युक्त होता है, उसमें टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इससे क्या लाभ होता है और ये कितना नुकसान देता है। पीने के पानी में टीडीएस क्या होता है और इसका क्या महत्व है। पानी एक अच्छा विलायक है और उसमें गंदगी आसानी से घुल जाती है। शुद्ध पानी बेस्वाद, बेरंग और बिना गंध का होता है, जिसे सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। घुलित ठोस पदार्थ या डिसॉल्व्ड सॉलिड्स किसी भी खनिज, नमक, धातु, अनाज या पानी में विसर्जित आयनों का उल्लेख करता है। पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। टीडीएस में अकार्बनिक लवण मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स और कुछ छोटी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पानी में विघटित होते हैं और विशेष रूप से भूजल में नाइट्रेट भी पानी में पाए जाते हैं। टीडीएस mg प्रति इकाई मात्रा मिलीग्राम लीटर की इकाइयों में व्यक्त की जाती है या इसे प्रति मिलियन ppm भागों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। आमतौर पर टीडीएस को प्राथमिक प्रदूषक नहीं माना जाता है, जैसे कि यह स्वास्थ्य प्रभाव से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है। इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि पानी शुद्ध या पीने योग्य है या नहीं, और टीडीएस यह भी संकेत करता है कि उसमें रासायनिक संदूषक है या नहीं। पीने के पानी में मौजूद टीडीएस के मतलब और महत्व के बारे में जानिए। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। पूरी दुनिया में भी अधिकतर भाग में पानी ही है। पानी के बिना जैसे मछली कुछ पल रह पाती है, वैसे ही हम भी सिर्फ कुछ दिन ही पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। पानी की शुद्धता अनेकों तरह से नापी जाती है। पानी में मौजूद टीडीएस के महत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। कहा जाता है कि पानी हमेशा छानकर या उबालकर ही पीना चाहिए ताकि पानी की अशुद्धियां निकल जाएं। साफ पानी पीने के लिए लोग घर में वाटर प्यूरिफायर तक लगा लेते हैं। पानी में एक अच्छे विलायक के गुण होने के कारण इसमें गंदगी भी आसानी से घुल जाती है। शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, जबकि जब हम पानी पीते हैं तो अलग अलग जगहों पर हमें पानी अलग स्वाद तो कभी अलग रंग के साथ मिलता है। पानी को टीडीएस के स्तर से वर्गीकृत किया जा सकता है। टीडीएस इन पार्ट्स पर मिलियन ppm 0 to 50। आइडियल ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म, रिवर्स ऑस्मोसिस, डाइलोनाइजेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। 50 to 100 कार्बन फिल्ट्रेशन, माउंटेन springs for aquifer। 100 to 20 hard water 170 TDS। 200 to 300 marginally acceptable। 300 to 400 high TDS water form the tape of mineral springs। 400 to 500 plus US EPA का मैक्सिमम कंटेमिनेशन लेवल और 100 से 400 तक एवरेज टेप वाटर होता है। अशुद्धियों के आधार पर पानी को निम्न तरह से बांटा जाता है: -500 मिलीग्राम या लीटर से कम या TDS 0.5 ppt,
500 से 300 मिलीग्राम या लीटर या TDS, 0.5 से 30 PPT, 30,000 से 40,000 मिलीग्राम या लीटर या TDS 30 से 40 PPT, पानी 40,000 से अधिक मिलीग्राम लीटर या TDS लेस देन 40 PPT। पानी में अशुद्धियों को बताने वाला TDS कम होना अच्छा माना जाता है, लेकिन पानी में खनिज पदार्थों का होना भी जरूरी है, क्योंकि पानी के द्वारा हमारे शरीर को नमक, खनिज लवण आदि आवश्यक तत्व भी प्राप्त होते हैं। Please subscribe to my channel and click on the bell icon, like, share and comments. Thanks for watching.